We are going to discuss about hydrocarbons. If I ask you what are hydrocarbons, hydrocarbons they are binary compounds of carbon and hydrogen. They are binary compounds. ऐसा compound जो सिर्फ दो एलिमेंट से बनता है, they are binary compounds. For example, here methane, formula is CH4. Methane is hydrocarbon because it consists of only two types of elements, carbon and hydrogen. Two types of elements, carbon and hydrogen. So if I ask you what are hydrocarbons, binary compounds of carbon and hydrogen are called hydrocarbons. What are hydrocarbons? Binary compounds. So can you give any other example of hydrocarbon? Can you give any other example of hydrocarbon besides methane? With formula कोई बता सकता है? With formula besides methane, any other? Niharika, your answer is wrong. I am asking hydrocarbon. तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा. सिर्फ क्या होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन. So another example I am giving you, for example, ethane. Ethane का formula C2H6. Formula of ethane is C2H6. So today we'll discuss in detail about hydrocarbons, their classification, their naming and all. We can classify hydrocarbons in two main groups: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Okay. Now what is the difference between saturated and unsaturated? Saturated hydrocarbons का मतलब होता है single bonded. Single bonded. जैसे last class हम लोगों ने discuss किया about covalent bonding. कोवेलेंट बॉन्ड में भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, देन दे आर सैचुरेटेड. एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अगेन टू टाइप्स. एक को हम लोग बोलेंगे एल्कीन एंड द अदर टाइप एल्काइन. अदर टाइप एल्काइन. सो एल्कीन, एल्काइन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एल्केन्स. Also called what? Alkane. So hydrocarbons को यहाँ तीन ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर चुके हैं: alkane, alkene and alkyne. Alkanes are single bonded, alkenes are double bonded and alkynes are triple bonded. कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन बोलेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन एंड सिंगल बॉन्ड होने से एल्केन. So hydrocarbons can be classified into two main groups: saturated and unsaturated. Unsaturated hydrocarbons can again be classified as alkene and alkyne, double bonded alkene and triple bonded alkyne. Okay. और आप नाम से भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा सैचुरेटेड कौन सा अनसैचुरेटेड, उनका सफिक्स से. सफिक्स अगर ANE होगा तो एल्केन होगा, ENE होगा तो एल्कीन होगा, YNE होगा तो एल्काइन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको नाम दे दूं एक प्रोपाइन, and if I ask you propine is alkane, alkene or alkyne, you can easily answer propine, alkane, alkene or alkyne. And the answer Minal has given, Chalak has given, Subham Jha, Ipshita Paul, it is alkyne. Okay. तो जितना भी आपको स्क्रीन में दिखाई देता है क्लास के ड्यूरिंग नोट डाउन करते रहना और जल्दी से हम स्क्रीन चेंज करेगा. सो हैव यू कंप्लीटेड इट?
ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सब लिखना कंप्लीट हो गया आप लोगों का? जस्ट रेज योर हैंड फॉर कंफर्मेशन. Okay, I am moving to another screen. Now, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाइड एज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. Hydrocarbons can be classified as alkane, alkene and alkyne. ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का. तो आपको मैं अगर बता देता हूं एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n. एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, where n means number of carbon. n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन होता है. और आपको अगर एक इंफॉर्मेशन दे दिया जाए यहाँ पे कि नंबर ऑफ कार्बन 1 होने से प्रीफिक्स that is used in naming hydrocarbon is meth. 2 होने से eth. आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहो. 3 होने से prop. 4 होने से ब्यूट. 5 पेंट. 6 हेक्स. 7 हेप्ट. 8 ऑक्ट. 9 नॉन. 10 डेक. ओके. सो अगर प्रीफिक्स मेथ हुआ आपको समझना हो नंबर ऑफ कार्बन 1 है और नंबर ऑफ कार्बन 3 होने से आपको नेमिंग करते वक्त प्रीफिक्स प्रॉप यूज करना होगा. एंड द कॉमन सफिक्सेस दैट आर यूज्ड, जो सफिक्स कॉमनली यूज्ड होता है दे आर ANE, ENE and YNE. ANE for carbon carbon single bond, ENE for carbon carbon double bond, YNE for carbon carbon triple bond. ओके. सो ये इंफॉर्मेशन देने के बाद अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, तो कैसे आप ये जो स्क्रीन पे जितना भी इंफॉर्मेशन है यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन एंड यू कैन इजीली टेल मी द फॉर्मूला ऑफ. अच्छा 6 और 7 क्या है यहाँ पर? 6 मीन्स हेक्स, 7 इज हेप्ट. 6 is hex, 7 is hept. पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन बता सकते हैं? एनी वन ऑफ यू? मृणाल बर्मन सबसे फास्ट आंसर किया, देन इप्शिता पॉल. देखना पेंटेन एक हाइड्रोकार्बन है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता करेंगे हम लोग? पेंटेन इज एट फर्स्ट यू विल हैव टू डिसाइड पेंटेन इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, क्या है वो डिसीजन लेना है. तो पेंटेन को हम लोग देखते ही समझ जाएंगे सफिक्स से ये एल्केन है. तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. तो यहाँ n का वैल्यू क्या होगा? पेंट से पता चल जाएगा n का वैल्यू क्या होगा. n का वैल्यू 5. आप यहाँ देख सकते हो n का वैल्यू 5. सो फॉर्मूला में 5 पुट करना है n की जगह पे. C5H2 into 5+2. So it is C5H10+2 12. So if I ask you what is the molecular formula of pentane, तो आंसर होगा C5H12. इसी तरह आपको अगर मैं पूछता हूं what is the molecular formula of pentene, what is the molecular formula of pentene? If I ask you, हिमांशु ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, सॉरी हिमांशु पहले वाला आंसर दिया है, this one. मृणाल बर्मन अगेन सबसे फास्ट, then Tiju, Subham Jha, they have given the answer. Ipshita Paul, Jhalak. So formula, molecular formula of pentene
पेंटीन का जनरल फॉर्मूला, पेंटीन इज एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2 एन का वैल्यू यहाँ भी 5, सो इट विल बी C5H2 यानी 10. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पेंटीन इज C5H10. अब मैं आपको अगर पूछता हूं पेंटाइन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पेंटाइन, इफ आई आस्क यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पेंटाइन. ओके, शुभम झा सबसे फास्ट, देन निशांत बोरा, इप्सिता पॉल, नितेश, झलक, अंतरा, विशाल, हिमांशु. सो पेंटाइन, पेंटाइन जनरल फॉर्मूला होगा, पेंटाइन इज एल्काइन, CnH2 और n का वैल्यू यहाँ भी 5, सो इट इज व्हाट C5H8 10 - 2 C5H8. ओके, सो अब आपको एक जनरल आइडिया हो गया बहुत हाइड्रोकार्बन्स का. आप नाम से फॉर्मूला बता सकते हो, and even from formula also you can find out name. So this screen is very much important. Just note down everything or take the screenshot and just inform me by raising your hand whether you have completed writing or taking the screenshot. 4 में BUT, ब्यूट बोलता है इसको, बट नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? ब्यूट. विशाल, नंबर 4 में BUT, ब्यूट. Should I move to another screen? So now I will give you some formula और अब आपको फॉर्मूला से नेम फाइंड आउट करने का कोशिश करना है. अगर हम आपको फॉर्मूला देता है C6H14 तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग? C6 होने से यहाँ पे प्रीफिक्स आ गया हेक्स. अब ये कौन सा जनरल फॉर्मूला के साथ मैच करता है वो देखना हम लोग को. CnH2 के साथ, CnH2 के साथ या CnH2 के साथ. तो अगर फर्स्ट वाला फॉर्मूला से मैच करेगा तो सफिक्स लगा देंगे ANE, सेकंड से सफिक्स लगा देंगे ENE, थर्ड से सफिक्स लगा देंगे YNE, बिकॉज फर्स्ट वन इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन, सेकंड इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, थर्ड वन इज द फॉर्मूला ऑफ एल्काइन. तो यहाँ पे हेक्स के साथ सफिक्स क्या लगना चाहिए? कौन सा फॉर्मूला से मैच करता है? इप्सिता पॉल ऑलरेडी गिवन द आंसर. किसके साथ मैच करता है? ओके, सो हियर सफिक्स विल बी व्हाट? ANE. ओके, अब ये तो है इसका फर्स्ट वाला है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, अब हेक्सेन, हेक्सेन का अभी हम ड्रॉ करेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ओके, क्या ड्रॉ करने वाला हम? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. कैसे ड्रॉ करना? जस्ट लुक एट द स्क्रीन. कितना कार्बन है? 6 कार्बन. दे आर लिंक टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड. कैसे पता चला हमको सिंगल बॉन्ड है? ANE, एल्केन्स आर सिंगल बॉन्डेड. सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिंक कर दिया. कार्बन के बारे में आप जान लो, कार्बन का वैलेंसी 4 है एंड कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स इन ऑल इट्स कंपाउंड. कार्बन अपना सभी कंपाउंड में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा. सो इफ यू लुक एट दिस चेन, फर्स्ट कार्बन के साथ कितना बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? फर्स्ट कार्बन के साथ कितना बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? विथ फर्स्ट कार्बन एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है, फर्स्ट 1 बॉन्ड. सो 1 है ऑलरेडी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ही. सो 1 इज देयर, 2 3 4, 2 आर ऑलरेडी देयर, 3 and 4, 2 आर ऑलरेडी देयर, 3 and 4, 3 and 4, again 3 and 4. okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो ये है हेक्सेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो ये आंसर देना C6H12 एंड दिस वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को थोड़ा कॉन्डेंस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं. जैसे
CH3 bond CH2 bond CH2 bond CH2 bond CH2 and then CH3. आप देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, सेकेंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, थर्ड के साथ 2, फोर्थ के साथ 2, फिफ्थ के साथ 2, सिक्स के साथ अगेन 3. सो ये कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला, इसको और भी कॉन्डेंस किया जा सकता है, वो भी आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं मैं. I can write here CH3 और CH2 कितना टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स. So in bracket I can write CH2 4 times and then CH3. ये भी पॉसिबल है, ये भी कॉन्डेंस फॉर्मूला. अब हम लोग एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं. हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? ये सबको समझ में आ गया? हेक्सेन का पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ किया जाता है? हैव यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन? ओके. अब हम लोग हेक्सीन के बारे में बात करेंगे. HEXENE. अब हम डायरेक्टली अगर आपको पूछे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, जल्दी बताओ. हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन. शुभम झा हैज गिवन द आंसर. हेक्सीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, झलक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है. C6H12. मिनाल बर्मन also he has given the answer. So it is what? C6H12. C6H12 is hexene. अब आप देखना इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं कैसे ड्रॉ करता हूं. 1 2 3 4 5 6 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से लिंक किया, लेकिन हमको पता है ENE सफिक्स होने से देयर शुड बी व्हाट? डबल बॉन्ड. हम डबल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन दे सकता है, हम सेकेंड और थर्ड के बीच में दे रहा है, कहीं भी दे सकता है. इट इज योर डिसीजन. आप स्ट्रक्चर बनाते वक्त आप डबल बॉन्ड कहीं भी दे सकते हो, लेकिन नेम में कुछ स्पेसिफिक मेंशन होने से स्पेसिफिक जगह पे देना होगा. हम समझाएगा आप लोगों को. फर्स्ट कार्बन के साथ कितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको? विथ फर्स्ट कार्बन यू कैन सी हाउ मेनी बॉन्ड्स? 1 ओनली. तो उसमें 3 और लगा सकते हैं हम लोग. 1 2 3. सेकेंड कार्बन के साथ 3 है, दोनों साइड मिला के तो 1. थर्ड कार्बन के साथ 3 है तो 1. फोर्थ कार्बन के साथ 2 है, 3 एंड 4. फिफ्थ कार्बन के साथ 2 है, 3 एंड 4. सिक्स कार्बन के साथ 1 2 3 एंड 4. नाउ वी कैन लिंक हाइड्रोजन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके. C6H12. अब इसका कॉन्डेंस्ड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कॉन्डेंस्ड क्लास 10 में इतना जरूरी नहीं, तो आपको जब टाइम मिले आप करके देखते रहना. यहाँ पे मैं एक चीज और आपको समझा रहा हूँ. इसका एक और सिस्टम में नेमिंग होता है. दैट सिस्टम इज कॉल्ड आयुपैक सिस्टम. किसी को याद है क्लास 9 में भी आपको आयुपैक मिला था, उसका फुल फॉर्म क्या? एनी वन ऑफ यू डू यू नो दैट फुल फॉर्म ऑफ आयुपैक? दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिससे केमिस्ट्री का कंट्रोल होता है, हम लोग बोल सकते हैं. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके. अकॉर्डिंग टू दैट इसका नाम होगा. ओके. हिमज्योति हैज गिवन द आंसर. एंड इसका नेमिंग होगा हेक्स 2 ENE. हेक्स 2 ENE क्यों हुआ इसका नाम? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड why it is called hex 2 ENE. Okay, so this one is the first carbon, this one is the second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, sixth carbon. तो डबल बॉन्ड कहां पे है? बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड. डबल बॉन्ड अगर सेकेंड और थर्ड के बीच में होगा तो हम लोग 2 लेंगे, सेकेंड और थर्ड में होने से 2 लेंगे, तो हेक्स 2 ENE इसीलिए इसका नाम है. हेक्स 2 ENE से हम लोग को पता चल जाता है कि डबल बॉन्ड है कहां पे एग्जैक्टली. डबल बॉन्ड कहां पे है? बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड. ओके. हैव यू अंडरस्टूड दिस? सबको समझ में आ रहा है? ओके. नाउ नेक्स्ट वन, हेक्साइन.
If I ask you what is the molecular formula of hexane, if I ask you what is the molecular formula of hexane, any one of you, Shubham Jha सबसे fast, C6H10, C6H10, okay, hexane, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना कार्बन? 6 कार्बन, okay, how many carbon? 6 कार्बन, 6 कार्बन को लिंक करना हम लोग को 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज हेक्साइन। और मैं अपना मर्जी से ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे रहा हूँ बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, between third and fourth triple bond with first carbon 1 2 3, with second carbon 1 2, with third carbon already 4 है, with fourth carbon already 4, देखो दोनों तरफ मिला के, fifth carbon 2 3 and 4, sixth carbon 1 2 3 and 4. now you can link hydrogen, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में always सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। So this one, okay, now who can guess the IUPAC name of this compound? हेक्साइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देगा निष्ठा, जस्ट वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला से पता चल जाएगा, और मिनाल ने IUPAC नेम भी बता दिया है, मिनाल, विशाल, झलक। द आंसर हियर इज हेक्स 3YNE, hex 3YNE, hexine, hex 3YNE, ओके। सो निष्ठा को ये नहीं समझ में आया कि इसका फॉर्मूला C6H10 कैसे हो गया, तो इसका फॉर्मूला C6H10 कैसे, वो यहाँ समझा देता हूं मैं आपको। हम लोग के पास कंपाउंड का नाम दिया हुआ हेक्साइन, हेक्साइन तो एल्काइन हुआ, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला ये रहा, तो CnH2n -2, हेक्स का मतलब होता है 6 नंबर ऑफ कार्बन, तो C6H2 into 6 हो गया 12 - 2, so it will be C6H10, C6H10. Have you understood? Nishta, have you understood this? Okay, just take the screenshot of this particular screen, इस screen का आप screenshot ले लो, इंपॉर्टेंट वन, और ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बनेट्स कंपाउंड चैप्टर में ग्रिप डेवलप करने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन, हैव यू कंप्लीटेड? ओके, हैव यू कंप्लीटेड? ओके, सो टिल नाउ अब हम लोग को नेम से फॉर्मूला और फॉर्मूला से नेम, और साथ में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने का टेक्निक भी हैव डिस्कस्ड, और अभी मैं कुछ और एग्जांपल डिस्कस करूंगा। हेक्सेन का IUPAC नेम हेक्स 1ANE, हेक्सेन में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें 1 2 देने का जरूरत नहीं है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो पोजीशन डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड में देना होता है। सो इफ आई आस्क यू, अब हम आप लोगों को कुछ नाम बताएगा, नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूला से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करना है। सो इफ आई टेल यू द नेम, फर्स्ट नेम अगर मैं आपको बताता हूँ प्रोपीन, जल्दी से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो, प्रोपीन, कौन बताएगा सबसे फास्ट प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इप्सिता पॉल सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट आंसर इप्सिता, देन मिनाल, मिनाल का रॉन्ग है, सॉरी, शुभम झा का करेक्ट है। अभी तक इप्सिता पॉल एंड शुभम झा दे गिव करेक्ट आंसर। झलक का आंसर रॉन्ग है, इट इज प्रोपीन। अंतरा योर आंसर इज करेक्ट, तीजू का आंसर भी रॉन्ग है, मिनाल का करेक्ट। प्रोपीन, प्रोपीन होने से C3H6 CnH2n,
अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कैसे देखना, 3 कार्बन, 1 2 एंड 3 कार्बन। प्रोपीन मतलब एक डबल बॉन्ड होगा। अब पहला कार्बन के साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो थर्ड एंड फोर्थ ऐसे लगा सकते हो आप। सेकेंड कार्बन के साथ 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 4। फर्स्ट थर्ड कार्बन के साथ 1 है, तो 2 3 एंड 4। सो फर्स्ट कार्बन के साथ H 2 हाइड्रोजन लगेगा, सेकेंड कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लगेगा, और थर्ड कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगेगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। ओके, अब एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्टेन। व्हाट शुड बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन? ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इफ यू हैव रिटन दैट इंफॉर्मेशन, क्लास में सब कुछ अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हाट शुड बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन? इप्सिता पॉल, शुभम झा, झलक, विशाल, तीजू, सबने करेक्ट आंसर दिया है। देन Navia also gave correct answer. Octane. Oct means 8. Octane is alkane, alkene और alkyne. Alkane है, आप दिमाग में कैलकुलेशन आप करना स्टार्ट करो, फॉर्मूला फ्रेम करने का कोशिश करो। Octane is alkane. Alkane होने से कैसे पता चला alkane? ANE. Okay, ANE. So alkane CnH twice n plus 2. Oct होने से n का वैल्यू होता है 8. So C8 H twice n हो गया 16, 16 plus 2 18. नाउ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो फर्स्ट कार्बन के साथ कितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है? 1, तो 2 3 4। कार्बन का वैलेंसी 4, और ऑल इट्स कंपाउंड कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। सेकंड के साथ 2 है, तो 3 और 4 हो गया। थर्ड में 3 एंड 4। देन वी कैन, सब में देख सकते हैं हम लोग 4 बॉन्ड होना चाहिए हर कार्बन के साथ, लास्ट में एक ही है, तो 1 2 एंड 3। एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका? ऑक्टेन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन। ओके, नेक्स्ट वन, एक एल्कीन डिस्कस किया, एक एल्केन, एंड नेक्स्ट वन ब्यूटाइन। Guess the molecular formula. Find out the molecular formula. Butane, but. What should be the molecular formula? इप्सिता पॉल सबसे फास्ट आंसर दिया है, लेकिन रॉन्ग है। देन छलक ने आंसर दिया, विशाल, मृणाल, निहारिका, हिमांशु, मनन का आंसर रॉन्ग है, बाकी सबका करेक्ट है। नाविया करेक्ट है आंसर। अंतरा, हिमज्योति, निशांत। So butane is alkyne. Alkyne होने से CnH twice n minus 2. But मतलब 4. So C4 H twice n minus 2. 8 minus 2 6. C4 H6. अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 2 3 and 4. How many carbon atoms? 4 carbon atoms. So first carbon atom के साथ एक ही बॉन्ड है, तो 2 3 and 4। सेकेंड कार्बन एटॉम के साथ 2 बॉन्ड है, 3 and 4। थर्ड के साथ 2 3 and 4। फोर्थ के साथ 1 2 3 and 4। नाउ वी कैन कंप्लीट द स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है? ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड देना है, जस्ट आई फॉरगॉट अबाउट दैट। ट्रिपल बॉन्ड ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड हम लोग यहाँ दे देते हैं, दिस वन। अगर हम लोग यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं, नाउ जस्ट लुक एट हियर। फर्स्ट कार्बन के साथ 3, सेकेंड कार्बन में ऑलरेडी 4 है, थर्ड कार्बन में ऑलरेडी 4, एंड लास्ट कार्बन में 1 2 and 3। लास्ट कार्बन में 1 2 3। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइन। अगर मैं आपको पूछूं कि इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर का आयुपैक नेमिंग क्या होगा, कोई गेस करेगा? एनी वन ऑफ यू? विल यू थिंक अबाउट इट? फर्स्ट का आयुपैक नेम क्या होगा?
फर्स्ट का आयुपैक नेम, शुभम झा का रॉन्ग है, मृणाल का भी रॉन्ग है, झलक का करेक्ट है, अंतरा रॉन्ग, ध्रुव ज्योति इनकम्प्लीट, शुभम झा रॉन्ग। ये है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड जिधर से डबल बॉन्ड पास में आएगा उधर से काउंटिंग करेगा। सो इट विल बी prop 1 ENE, prop 1 ENE। इसका कोई गैस करेगा? राइट साइड ब्यूटाइन का आयुपैक नेमिंग, आयुपैक नेमिंग ऑफ ब्यूटाइन। ओके, विशाल, विशाल, देन मिनाल, निष्ठा, झलक, ऑल आर करेक्ट। शुभम झा का रॉन्ग है। यहाँ पे बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, सो इट विल बी ब्यूट 2 YNE, ब्यूट 2 YNE, ब्यूटाइन, ब्यूट 2 YNE, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, इसीलिए ब्यूट 2 YNE। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब तो आपको एक चीज इजी लगने लग गया होगा, नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूला से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का टेक्निक समझ में आ गया होगा अभी तक। निहारिका is asking when do we have to draw triple bond or single bond? कैसे पता चलेगा ट्रिपल होना चाहिए सिंगल बॉन्ड होना चाहिए? तो आपको सफिक्स से, सफिक्स में ANE होने से सब सिंगल बॉन्ड होगा, ENE होने से एक जगह में डबल बॉन्ड देना होगा, YNE होने से एक जगह में ट्रिपल बॉन्ड देना होगा, YNE होने से एक जगह में ट्रिपल बॉन्ड देना होगा। ओके, YNE होने से एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देना होगा। हैव यू अंडरस्टूड? YNE होने से एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देना होगा। Have you understood? Just inform me in the chat box. ओके, अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं इसमें, थोड़ा और इंटरेस्टिंग। आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन। इस बार हम आपको फॉर्मूला देगा और फॉर्मूला से नेम एंड देन नेम से स्ट्रक्चर, फॉर्मूला बताएगा इस बार। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट फॉर्मूला C7H14, सेकेंड वन C5H8, थर्ड वन C2H2। इन तीनों का नेम के बारे में सोचो। फर्स्ट वन, जल्दी से, फर्स्ट वन का नेम क्या होना चाहिए? फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, व्हाट शुड बी द नेम? फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, व्हाट शुड बी द नेम? नाविया सबसे फास्ट आंसर दिया नाविया ने, देन तीजू, देन हिमांशु, देन मिनाल, बाकी सब ने इनकम्प्लीट या रॉन्ग दिया है। फर्स्ट वन 7 कार्बन तो हेप्ट और साइक्लो नहीं होगा। इप्सिता पॉल, साइक्लो अभी साइक्लो में मत जाओ, साइक्लिक कंपाउंड नहीं डिस्कस कर रहे हम लोग। So first one, it is heptene. First one is heptene. Now second one, Tiju has given the answer. Second one is pentine. Second one is pentine. Now third one, anyone? Good. Minal has given the answer. Minal सबसे fast answer दिया. Third one is ethyne. Third one is ethyne. YNE. Third one is ethyne. Okay. Now all of you try to draw the structure yourself. Structural formula अपने आप try करो, मैं draw करके दूंगा और उसे compare करना। पहले ही आप लोग try करो structural formula of heptene. हेप्टीन में 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, लेकिन ENE होने से डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड आप कहीं भी दे सकते हो बिटवीन एनी 2 कार्बन, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो यहाँ पे दिया फर्स्ट कार्बन में 3 बॉन्ड लगेगा, सेकंड में 1, थर्ड में 1, फोर्थ में 2, फिफ्थ में 2,
सिक्स्थ में 2, सेवेंथ में 3. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सी 7H14. कौन इसका आयुपैक नेम गेस करेगा? फर्स्ट वन का आयुपैक नेमिंग, एनीवन हु वांट्स टू गेस आयुपैक नेम? आयुपैक नेम क्या होना चाहिए? फर्स्ट वन, व्हाट शुड बी द आयुपैक नेम फॉर द फर्स्ट वन? गुड, सबसे पहले आंसर दिया है झलक ने. देन हिमांशु, इट इज हेप्ट 2ENE. Hep2ENE. ओके, देन पेंटाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग ट्राई करेंगे. 1 2 3 4 5. इस बार हम ट्रिपल बॉन्ड यहां पे दे रहे हैं. ठीक है, सो स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए पहला में 1 2 3, सेकेंड में 1 2, थर्ड में ऑलरेडी 4 है, फोर्थ में ऑलरेडी 4 है, फिफ्थ में 1 2 and 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, C5H8. सो आपको अगर पूछा जाए इसका आयुपैक नेम गेस करो, क्या होना चाहिए? ओके, सबने आंसर दिया है और सबका ही रॉन्ग है. अब देखो इसमें क्या ट्रिक है. आयुपैक सिस्टम में जब आप नेमिंग करोगे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का आपको प्रेफरेंस देना, प्रेफरेंस काउंटिंग में. ओके, तो आप लेफ्ट साइड से काउंट करने से ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन मिलता है 2 and 3. सॉरी, लेफ्ट साइड से काउंटिंग करने से आपको पोजीशन यहाँ पे मिलता है 3 and 4, और राइट साइड से काउंटिंग करने से राइट टू लेफ्ट आपको पोजीशन मिलता है 2 and 3. तो आपको लोअर नंबर सिलेक्ट करना होगा. ठीक है, 2 and 3 में 2 सिलेक्ट करना होगा. सो व्हाट शुड बी द नेम इफ आई आस्क यू नाउ? नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट शुड बी द नेम? ओके, अब करेक्ट है. सबसे फास्ट आंसर दिया है ध्रुव ज्योति ने. अब इसका आंसर आपको पता होना चाहिए. पेंट, पेंट के बाद 2YNE, पेंट 2YNE. और नेक्स्ट वन इथाइन. इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, 2 ही कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगेगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. नाविया पूछे हाउ डू वी नो वेयर टू पुट डबल और ट्रिपल बॉन्ड? अगर नाम आपको ऐसा दिया हुआ है तो आप कहीं भी पुट कर सकती हो, बाद में आयुपैक नेम लिख सकती हो. लेकिन आपको आयुपैक नेम अगर दे दिया गया, कभी ऐसा भी हो सकता है, मैं नेक्स्ट में आपको डिस्कस करके बताता हूँ. आपको अगर आयुपैक नेम गिवन है तो आपको उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पुट करना होगा. ओके, पेंट 2YNE कैसे है, विशाल पूछ रहे हैं. अगर हम लोग लेफ्ट से राइट में काउंटिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? 3 और 4 के बीच में. और राइट टू लेफ्ट काउंट करने से 2 and 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में. तो अकॉर्डिंग टू आयुपैक यू विल हैव टू सिलेक्ट द लोअर नंबर. तो 2 और 3 के बीच में होने से आपको 2 लेना पड़ेगा. 2 और 3 के बीच में होने से आपको 2 लेना पड़ेगा. ओके, अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? ओके, आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन. मनन को समझाना एक और बात. ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर कर देता है. इस बार आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज ऐसे, ड्रॉ the structural formula of number 1
oct 2 ENE, number 2 hex 2 YNE। ठीक है, आपको oct 2 ENE और hex 2 YNE इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। सो oct 2 ENE, इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये डबल बॉन्ड हमको कहाँ देना है? बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। तो इधर से काउंट करने से सेकेंड एंड थर्ड इधर आता है, और राइट टू लेफ्ट काउंट करने से सेकेंड एंड थर्ड इधर आएगा। तो आप यहाँ भी डबल बॉन्ड दे सकते हो, आप यहाँ भी डबल बॉन्ड दे सकते हो। जब आप फर्स्ट चेन में काउंटिंग करोगे तो डबल बॉन्ड जिधर से उधर से काउंटिंग करोगे, सेकेंड बॉन्ड में भी जिधर से डबल बॉन्ड है उधर से काउंटिंग करना होगा। सो देन यू कैन पुट हाइड्रोजन एटॉम्स। आप हाइड्रोजन को लिंक कर सकते हो बॉन्डिंग के साथ, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 and 3, and now you can link hydrogen atoms 1 2 3 1 1 1। तो इस तरह हम लोग लिंक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सॉरी, यहाँ ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 1 ही रहेगा, और यहाँ पर भी 1, सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3। सभी कार्बन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन एटॉम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स in all its compounds. So दोनों ही octene oct 2 ENE होगा, फर्स्ट वन एज वेल एज सेकेंड वन, फर्स्ट वन एज वेल एज सेकेंड वन। और सेकेंड कंपाउंड इज व्हाट? hex 2 YNE, hex 2 YNE। तो 1 2 3 4 5 6 डबल 2 YNE उनसे YNE ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे सकते हो, या 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दे सकते हो, तब भी एक ही बात है, ट्रिपल बॉन्ड आप वहां दे सकते हो। अब इसको कंप्लीट कर दो। फर्स्ट में 1 2 3, सेकेंड में ऑलरेडी 4, थर्ड में ऑलरेडी 4, फोर्थ में 2 देन 2 देन 3। हियर 1 2 3 1 1, ऑलरेडी 4 है इधर, 1 2 3। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो ऑक्टीन का वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C8H16, और हेक्साइन का C6H10। सो जस्ट काउंटिंग कर लेते हैं हम लोग, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ इधर। 3 and 4 6 10, और यहाँ पे 3 and 4 and 6 10। So it is hex 2 YN in both the cases. Have you understood? हाँ, 2 बार ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक आप ड्रॉ कर सकते हो।
हिमज्योति पूछ रहा है इथाइन का आईयूपैक नेम क्या होगा। इथाइन उसका आईयूपैक नेम ही है, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन तो ऑलवेज 1 ही होगा, तो 1 तो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? अब तक का जितना भी क्लास होगा केमिस्ट्री का, आज का क्लास में सबसे ज्यादा मजा आ रहा होगा जिसको समझ में आया, आई थिंक सो। ओके, मूविंग टू अनदर स्क्रीन। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला देता हूं, आपको सिर्फ ये बताना है वो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन। ठीक है, फॉर्मूला देख के आपको बताना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इफ आई आस्क यू, अच्छा नाम भी बता देना, C4H8 इज, ठीक है नाम बताने से भी हो जाएगा, आपको पता चल ही जाएगा। C4H8, व्हाट शुड बी द नेम? C4H8, नाविया ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, देन हिमांशु, देन मिनाल, बट हिमांशु का मिनाल का रॉन्ग है आंसर। ओके, इप्शिता पॉल करेक्ट है, अंतरा, शुभम झा ऑल आर करेक्ट। इसका नेम जो है दैट इज ब्यूटीन, ब्यूटीन, एंड ब्यूटीन यू नो ब्यूटीन इज एल्कीन। देन C2H2, what should be the name of this compound? C2H2, C2H2, what should be the name? Okay, सबसे फास्ट आंसर नाविया ने दिया, देन हिमांशु, देन मनन, शुभम झा, मिनाल, nishant, and so many others are giving answer. So this one is ethine, ethine. Okay, then C3H4, what should be the name of this compound? C3H4, C3H4, Himanshu, Navia, Ipshita, then Minal, you're correct. Now Nishant, Chalak, Himjyoti, Kripa, you are getting correct answer, and it is propine, propine. Okay, so if I ask you, first one is saturated hydrocarbon or unsaturated hydrocarbon? First one is saturated or unsaturated? First one is saturated or unsaturated? Good. ये butene है, butene is alkene, alkenes are unsaturated. Ethine is saturated or unsaturated? Ethine, okay, unsaturated. Propine is saturated or unsaturated? Propine, unsaturated. Propine is unsaturated. Okay, so I hope you've understood everything in today's class, or just mark your attendance. Sufficient information जो target था class का वो complete हो चुका है. Just mark your attendance.